हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बेजियर कर्व के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बेजियर कर्व होता क्या है। सपोज ए सेट ऑफ n plus 1 कंट्रोल पॉइंट्स P0, P1, P2 up to Pn, then the corresponding Bezier curve or Westin Bezier curve is given by Cu is equal to I is equal to 0 to n Pi Bi and u, where value of u lies between 0 to 1, and Bi and u is the Bezier blending function, which is defined as Bi and u is equal to NCI u square 1 into 1 minus u power n minus I, where n is the degree of the Bezier curve. NCI is the binomial coefficient, which is defined as NCI is equal to n factorial divided by I factorial into n minus I factorial. This is the definition of the Bezier curve. If you आपको एग्जाम में किसी भी बेजियर कर्व के बारे में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बेजियर कर्व को डिफाइन करेंगे कि बेजियर कर्व में n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, देन P0 to Pn, then the corresponding Bezier curve or Westin Bezier curve is given by this much, and you have to define the value of the binomial coefficient. That is all about the Bezier curve. So simply you have to define the definition of the Bezier curve and nothing else. So next we see the cubic Bezier curve. Basically cubic Bezier curve क्या होता है? To represent the cubic Bezier curve we require 4 control points. Unlike B-spline curve, we cannot add additional point. B-spline curve की तरह हम जो है कोई additional point add नहीं कर सकते हैं. And smoothly extend the cubic Bezier curve, और cubic Bezier curve को smoothly हम extend कर सकते हैं. But we can pick 4 more points and construct a second curve which can be attached to the first curve. As we know, Bezier curve begins at the first control points and ends at the last control points. This means if we want to connect two Bezier curve, we just make the first control point of the second curve match the last control point of the first curve. So first curve का कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड कर्व का जो है लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द क्यूबिक Bezier कर्व आर एज फॉलोज. x इक्वल टू x4 u क्यू प्लस 3x3 u स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू इन प्लस 3x2 u इंटू 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस x1 1 माइनस यू का होल क्यूब. इन दिस वे y and z we can define. So this is all about the cubic Bezier curve कि cubic Bezier curve होता क्या है और इसके वो किस तरीके से किस इक्वेशन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं. The x y z component of equation value are given here. This is all about cubic Bezier curve. Now we will talk about the B-spline curve कि बेसिकली B-spline curve होता क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. Bezier curve is the स्पेशल केस ऑफ द B-spline curve. Bezier curve जो है B-spline curve का स्पेशल केस होता है और ये B-spline इज द generalization of the Bezier curve. B-spline curve is the generalization of the Bezier curve. Bezier curve का generalization फॉर्म होता है. B-spline is defined as Cu equal to I equal to 0 to n Pi Nip into u. Nip u. I and P are in the suffix. U is the corresponding to n, where value of P lies between 2 less or equal to P less or equal to n plus 1 and u min less or equal to u less or equal to u max. u की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में क्या करती है, एडजस्ट करती है. ये पी आई आर कंट्रोल पॉइंट्स. पी आई जो है आपके कंट्रोल पॉइंट्स है. एन आई पी इज ए पी स्प्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन. बी स्प्लाइन का जो ब्लेंडिंग फंक्शन क्या है हमारा, एन आई पी यू इज द बी स्प्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन. तो इस तरीके से एन आई पी यू को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ब्लेंडिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, यू माइनस यू आई अपॉन यू आई प्लस पी माइनस 1 माइनस यू आई इंटू एन आई पी आई माइनस 1 यू प्लस यू आई प्लस पी माइनस यू अपॉन यू आई प्लस पी माइनस यू आई प्लस 1 इंटू एन आई प्लस 1 कामा पी माइनस 1 यू. तो इस तरीके से हम जो है B-spline कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि B-spline कर्व हमारा जो है Bezier कर्व का स्पेशल फार्म होता है, जनरलाइजेशन फार्म होता है Bezier कर्व का. और Bezier कर्व को B-spline कर्व को इस तरीके से इक्वेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं और ब्लेंडिंग फंक्शन को हम जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द B-spline कर्व. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द Bezier कर्व. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द B-spline कर्व कि B-spline कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. तो B-spline की पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल B-spline ब्लेंडिंग फंक्शन इफ वी lies within the convex hull is always 1.
जैसा कि आपने देखा था कि विजय कर्व की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल ब्लेंडिंग फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी तरीके से बी स्प्लाइन पर की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल ब्लेंडिंग फंक्शन इज इक्वल टू 1। एनी कर्व हैविंग n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैज n+1 ब्लेंडिंग फंक्शन। In the case of the B-spline curve, any curve having n+1 control points, then it has the n+1 blending function. The curve has degree p-1, where p is the order. Any control point can affect all the sections, means it has numerical instability. कोई भी इन ए कंट्रोल पॉइंट कैन अफेक्ट ऑल द सेक्शन, कोई भी कंट्रोल पॉइंट किसी भी सेक्शन को अफेक्ट कर सकता है, मीन्स इट हैज़ न्यूमेरिकल इनस्टेबिलिटी। इसकी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, इनस्टेबल होता है, न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी होती है। देखिए साथ बी स्प्लाइन कर ईच पीस ऑफ द बी स्प्लाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पी कंट्रोल पॉइंट्स। जो भी बी स्प्लाइन का जो पी एक पीस होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पी कंट्रोल पॉइंट्स, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट के थ्रू क्या होता है, अफेक्टेड होता है। बी स्प्लाइन हैव लोकल कंट्रोल ओवर द शेप ऑफ द कर्व। बी स्प्लाइन हैज़ द लोकल कंट्रोल ऑन द शेप ऑफ द कर्व। सेवन्थ आपका जो है प्रॉपर्टी है बी स्प्लाइन कर्व की, बी स्प्लाइन आर मोर कम्प्लेक्स देन बेजियर कर्व। बेजियर कर्व के कंपेरिजन में बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है आपका, ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द बेजियर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व, क्यूबिक बेजियर कर्व एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बी स्प्लाइन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बेजियर कर्व होता क्या है, बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है, क्यूबिक बेजियर कर्व क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ द बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है। ये चारों ही टॉपिक बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से जो है लर्न कर लीजिए और एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू सो मच।